Assalamu alaikum, class 6. Hope you will be fine. Students, here is your book of English, Oxford Modern English. And students, it is our today's lecture, part 2. So let's start our topic. Students, in lecture part 2, we are going to start another interesting story, The Ransom of Red Sheep, and it's a unit 2. Before going to start the reading, we will discuss about the author of the story. About the author, O. Henry, 1862 to 1910, was William Sidney Porter's pen name. His short stories are known for their playful and witty content and their unexpected or surprise ending. The Ransom of Red Sheep is a brilliant example of O. Henry's use of a plot, twist, and humor. Students, before going in detail, here I will brief to you about The Ransom of Red Sheep. The Ransom of Red Sheep is a humorous and interesting story written by O. Henry, an American author. In this story, a little boy was kidnapped, but the child's father not only refused to pay the ransom, the amount demanded by the kidnapper to set free the child, but also he asked the kidnappers to pay him $250 only, then he would take away the child from them. Students, it's humorous, and we can know from this context that it is a humorous and interesting story. Why would the kidnappers pay the fathers to send the child back home? Still, something happened which made the kidnappers to pay the amount. Let's see what the story is. The story is narrated by one of the characters named Sam. Sam and Bill needed some money, and they thought that kidnapping is an interesting or easy way to raise money. So let's start our topic, students. Here are some sight words. Words to know: accede, to agree to a demand or request; buggy, a horse drawn cart; counter, proposition, an offer made as an alternative to a previous one; foreclose, to take back a property that was bought with borrowed money because that money is not being paid back as agreed; mortgage, a loan usually taken when buying property; prominent, important, well-known; provisions, food, drink, and equipment; scout, a soldier or other person sent out to investigate in secret; subjugation, to be brought under complete control, conquered; superstitiously, without being noticed, secretly; treachery, betrayal of trust. So students, let's start our reading. A story about a kidnapping in which the kidnappers get more than they bargained for. मीन कि ये स्टोरी है हमारी किडनैपिंग के बारे में, जिसमें किडनैपर्स को जो उनकी तवक्कुआत होती हैं उससे ज़्यादा उन्हें फेस करना पड़ता है. We were down south in Alabama, Bill Driscoll and myself, when this kidnapping idea struck us. मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये स्टोरी नरेट हो रही है. दो जो कैरेक्टर हैं, बिल ड्रिस्कोल एंड माई सेल्फ इज़ नेम्ड एज सैम. ये दोनों फ्रेंड्स हैं आपस में, तो वही हमें कहानी नरेट कर रहे हैं, कहानी सुना रहा है. वो कह रहा है कि वी वर डाउन साउथ, हम जनूब में थे, इन अल्बामा में. बिल ड्रिस्कोल एंड माई सेल्फ एंड मी, हम दोनों थे. व्हेन दिस किडनैपिंग आइडिया स्टक अस, जब ये अगवा का ख्याल हमारे दिमाग में आया. बिल एंड मी हैड अबाउट $600. बिल और मेरे पास तकरीबन $600 थे. एंड वी नीडेड जस्ट $2,000 मोर, और हमें $2,000 मोर की ज़रूरत थी, $2,000 ज़्यादा की ज़रूरत थी. टू बाय सम लैंड इन वेस्टर्न इलिनॉय, हमें वेस्टर्न इलिनॉइस में कुछ ज़मीन ख़रीदने के लिए $2,000 मज़ीद दरकार थे. We figured that family love is strongest in semi-rural communities
कह रहे कि फिगर्ड हमने अंदाज़ा लगाया, जज किया डेट फैमिली लव इसके ख़ानदान का प्यार एक दूसरे के साथ इज स्ट्रॉन्गेस्ट मजबूत है इन सेमी रूरल कम्युनिटीज़ जो नीम देहाती आबादियाँ हैं उनमें। एंड डिसाइडेड टू डू और किडनैपिंग इन सुमित, और हमने फ़ैसला किया कि हम अपना जो अगवा का काम है वो सुमित में करेंगे, अ स्मॉल टाउन जो कि एक छोटा सा कस्बा है। वी सिलेक्टेड फॉर आवर विक्टिम, हमने इंतखाब किया फॉर आवर विक्टिम अपने शिकार के तौर पे, द ओनली चाइल्ड ऑफ अ प्रोमिनेंट सिटीज़न, एक ओनली चाइल्ड एक अकलौता बेटा था, ऑफ अ प्रोमिनेंट एक वेल नोन जाने माने सिटीज़न शहरी का, नेम्ड एबेंजन डॉर्सेट जो कि जिसका नाम एबेंडन डॉर्सेट था। कहने कि हमने उस के इकलौते बेटे का अपने शिकार के तौर पर इंतखाब किया। Mr. Dorset was known for his wealth which he made from lending mortgages and making foreclosures. मिस्टर डॉर्सेट ने अपनी बहुत ज़्यादा दौलत कमाई हुई थी फ्राम लैंडिंग मॉर्गेजेस होता है कि कोई चीज़ गिरवी रखवा लेना, मीन के वो लोगों को चीज़ें गिरवी रख के उसके पैसे देता था, और जब वो मुआयना मुद्दत तक उन चीज़ों उस लोन को वापस नहीं कर सकते थे तो वो फिर उससे जब वापस देता था उनसे लोन तो वो डबल होके लेता था। इस तरह से उसने अपनी दौलत खूब कमाई हुई थी। द किड वॉज अ बॉय ऑफ 10 विद फ्रैकल्स एंड ब्राइट रेड हेयर्स, वो जो बच्चा था उसकी उम्र 10 साल थी, उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा तिल थे और उसके बाल सुर्ख रंग के थे। बिल एंड मी फिगर्ड दैट बेंजर वुड एग्री टू पे अ रैंसम ऑफ $2000। बिल और मैंने अंदाज़ा लगाया कि अबेंजर इस बच्चे के लिए राज़ी हो जाएगा हमें $2 का मुआवजा देने के लिए, $2000 का मुआवजा देने के लिए वो राज़ी हो जाएगा। बट वेट टिल आई टेल यू व्हाट हैपन, लेकिन आप इंतज़ार करें तब तक मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या। यहाँ पे वो स्टोरी सुना रहा है हमें, वो कह रहे कि मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ और कैसे हुआ और हम कैसे अपने अख्ताम तक पहुँचे। About 2 miles from Summit was a little tree-covered mountain. About 2 miles from Summit was a little tree-covered mountain. सुमिट से तकरीबन 2 मील के फासले पर a little tree-covered mountain, वहाँ पे एक छोटा सा दरख्तों से ढका हुआ पहाड़ था। On the rear slopes of this mountain, उस पहाड़ की जो ढलान थी, ज़ेरी ढलान थी, उस पर was a cave, एक गार था। There we stored provisions, जहाँ पे हमने अपना सामान वगैरह छुपा दिया। सामान रसद मीन के जो सामान उन्हें आगे उस अगवा के लिए पेश आने वाला था, जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, वो उन्होंने वहाँ पे छुपा दिया। One evening, एक शाम, we drove in a buggy past old Dorset's house, एक शाम हम बगी पर सवार होकर डॉर्सेट के घर के पास से गुजरे। द किड वॉज इन द स्ट्रीट, बच्चा गली में था। थ्रोइंग रॉक्स एट अ किटन ऑन द ऑपोजिट फेंस, वो सामने मौजूद बाड़ पर बैठा एक छोटे से बलूंगड़े पर पत्थर फेंक रहा था। हे सेज बिल, ओए बिल कहता है, वुड यू लाइक सम कैंडी, क्या तुम मिठाई खाना चाहोगे? द बॉय थ्रू अ पीस ऑफ ब्रिक एट बिल्स हेड, लड़के ने एक ईंट का छोटा सा टुकड़ा उठाकर बिल के सर पर खींच मारा। एंड इट इज़ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि वो बच्चा जिससे वो अगवा करना चाहते हैं, किडनैप करना चाहते हैं, वो उनको ही पत्थर फेंक रहा है। That boy put up a fight, but eventually we got him in the buggy and drove up to the cave. उस लड़के ने बहुत ज़्यादा लड़ाई की, पुट अप फाइट, हाथ पैर मारे, लेकिन आखिरकार हम उसे बग्गी में डालकर गार में लाने में कामयाब हो गए। After dark, I drove the buggy back to the village. जब अंधेरा छा गया तब मैं उस बग्गी को वापस ले गया उस गांव में। I had hired it in, जहाँ से मैंने उसे हाइड किया था, किराए पे लिया था। And walked back, और दोबारा वापस आ गया। Bill was examining and treating the scratches and bruises on his face and legs. Examining होता है मुआयना करना, and treating होता है किसी चीज़ को ट्रीट करना, इलाज करना। Bill was examining and treating, Bill अपने जिस्म पर और चेहरे पर पड़ने वाली खराशें और नील का जायज़ा ले रहा था और उन्हें ठीक कर रहा था। There was a burning fire. There was a fire burning in the cave. गार में जलती हुई आग थी। And the boy was sitting by it, और लड़का उसके पास बैठा हुआ था। With 2 buzzard tail feathers,
स्टक इन हिज रेड हेयर, और उसने गिद्ध की दुम के 2 पर अपने सुर्ख बालों में लगाए हुए थे। ये सारी बातें हमें कौन बता रहा है? सैम बता रहा है कि जब वो वापस आया तो उस वक़्त की क्या सिचुएशन थी। ही पॉइंट्स अ स्टिक एट मी एंड सेज, उसने मेरी तरफ एक छड़ी से इशारा किया और कहा, हे कर्स्ड पेल फेस, हे बददुआए हुए पीले चेहरे वाले, डू यू डेयर टू एंटर रेड चीफ्स कैंप, क्या तुम रेड चीफ के पड़ाव में दाखिल होने की हिम्मत कर रहे हो? ही इज़ ऑल राइट नाउ सेज बिल, बिल कहता है अब ये सुधर गया है। बिल किसके बारे में कह रहा है? उस लड़के के बारे में कह रहा है कि अब ये सुधर गया है। वी आर प्लेइंग रेड इंडियन, हम रेड इंडियन खेल रहे हैं। आई एम ओल्ड हैंक, मैं ओल्ड हैंक हूँ। रेड चीफ्स कैप्टिव, रेड चीफ का कैदी। एंड आई एम टू बी स्क्लैप एट डे ब्रेक, और फू पटने पर मीन की अगली सुबह होने पर मेरे सर की खाल उतार ली जाएगी। आउच दैट किड कैन किक हार्ड, ये बच्चा बहुत ज़ोर से किक लगाता है या ठुड्डे वगैरह मारता है। द बॉय सीम्ड वेरी हैप्पी, वो लड़का बहुत खुश मालूम हुआ। द फन ऑफ कैंपिंग आउट हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वॉज अ कैप्टिव, मतलब कि उन्होंने हीमा बाहर की तरफ लगाया हुआ था, तो हीमा बाहर की तरफ लगाने से वो ये भूल गया कि वो एक कैप्टिव मीन उनका कैदी है। ही इमीडिएटली नेम्ड मी सैंक आई, उसने उसी वक्त फौरी तौर पे मुझे सैंक आई का नाम दे दिया, 10 पाए, जो कि एक जासूस था। एंड अनाउंस दैट आई वॉज टू मेट माई एंड द नेक्स्ट डे, और ये भी बात मुझे बता दी कि मैं कल अपने अख्ताम को पहुँच जाऊँगा। देन वी हैड सुपर, तब हमने खाना खाया। एंड ही फिल्ड हिज माउथ फुल ऑफ मीट, और उसने अपना मुंह भर लिया गोश्त से, ब्रेड रोटी से, एंड ग्रेवी और मसाले से। एंड टॉक, और वो बातें करता रहा। हिज स्पीच वेंट समथिंग लाइक दिस, उसकी जो गुफ्तगू थी वो कुछ इस किस्म की थी। आई नेवर कैम्प्ड आउट बिफोर, इट्स फन, बट आई हैड अ पेट वंस एंड आई वॉज 9 लास्ट बर्थडे। Are there any real red Indians in those woods? I want some more gravy. Do the moving trees make the wind blow? उसकी बातें कुछ इस किस्म की थी। I never camped out before, मैंने पहले कभी खुले में हैमा नहीं लगाया। It's a fun, ये एक बहुत ही मज़े की बात है। But I had a pet once, एक बार मेरे पास एक पालतू हुआ करता था, और पिछली सालगिरह पर मैं 9 साल का था। क्या इस जंगल में असली रेड इंडियन मौजूद हैं? मुझे थोड़ा सा मसाला और चाहिए। क्या चलते हुए दरख्त हवा को चलने पे मजबूर कर देते हैं? वी हैड 5 पपीज़, हमारे पास 5 पपीज़ थे, मीन 5 पल्ले थे। वट मेक्स योर नोज सो रेड, हैंक तुम्हारी नाक कितनी सुर्ख क्यों हो रही है? माई फादर हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, मेरे बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। आर द स्टार्स हॉट, क्या सितारे गर्म हैं? डू ऑक्सन मेक एनी नॉइज़, क्या बैल शोर मचाते हैं? वाई आर ऑरेंज राउंड, ऑरेंज संतरे इतने गोल क्यों होते हैं? अ पैरट कैन टॉक, एक तोता बातें कर सकता है। बट अ मंकी और अ फिश कांट, लेकिन एक मछली और गधा नहीं। बंदर, लेकिन एक मछली या बंदर बातें नहीं कर सकते। Every few minutes he would remember that he was an red Indian, हर चंद मिनट के बाद इसे याद आ जाता कि वो एक रेड इंडियन है। एंड वुड लेट आउट अ वाहू होता है कि एक जंगली किस्म का नारा या पुरजोर किस्म का जंगली नारा वो निकालता अपने मुँह से। दैट मेड ओल्ड हैंक शिवर, जो कि उस ओल्ड हैंक को कांपने पर मजबूर कर देता। दैट बॉय हैड बिल टेरराइज्ड फ्राम द स्टार्ट, उस लड़के ने शुरू से ही बिल को खौफजदा कर दिया था। आई सेज, मैं कहता हूँ, किड वुड यू लाइक टू गो होम, क्या तुम घर जाना चाहोगे? आह व्हाट फॉर सेज शी, ओह किस लिए? वो कहता है, आई डोंट हैव एनी फन एट होम, मुझे घर में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। आई हेट स्कूल, और स्कूल से मुझे नफरत है। आई लाइक कैंपिंग, हैमा लगाना मुझे पसंद है। यू वॉन्ट टेक मी होम, तुम मुझे घर नहीं ले जाओगे। सेक आई विल यू, सेक आई क्या तुम लेके जाओगे? नॉट राइट अवे, यस सेज आई, अभी नहीं लेके जाऊँगा, मैंने कहा। या सेज ही, बिल्कुल सही, वो कहता है।
I never had such fun in all my life. मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना मज़ा कभी नहीं आया जो अब आ रहा है. At about 11 o'clock, तकरीबन 11 बजे तक we spread down some white blankets and went to bed. हमने कुछ चौड़े कंबल बिछाए and went to bed और हम सोने के लिए चले गए. Red Chief kept us awake for 3 hours. उस रेड चीफ, उस लड़के को उन्होंने रेड चीफ का नाम दे दिया. उन्होंने नहीं बल्कि उस लड़के ने खुद ही अपना नाम रेड चीफ रख लिया था. वो कह रहे कि रेड चीफ ने उन्हें तकरीबन 3 घंटे तक जगाए रखा. जंपिंग अप एंड रीचिंग फॉर हिज राइफल, उछलते हुए और अपनी राइफल के लिए हाथ बढ़ाते हुए. एंड स्क्रीचिंग इन आवर ईयर्स, और हमारे कानों में चीखते हुए. एज ईच क्रैकल ऑफ अ ट्विग, हर कली के चटकने. आर द रसल ऑफ अ लीफ, या किसी भी फूल के खिलने से उसे यूँ महसूस होता. मेड हिम इमेजिन, वो यूँ महसूस करता, या किसी फूल की किसी भी पत्ते की सरसराहट. आर द रसल ऑफ अ लीफ, किसी भी पत्ते के हिलने या उसके सरसराने से वो यूँ महसूस करता. दैट आउटलॉज वर अप्रोचिंग, के मुजरिम उन्हें पकड़ने के लिए अप्रोच कर रहे हैं या उन तक पहुंचने वाले हैं. एट लास्ट आहरकार आई फेल इनटू अ ट्रबल्ड स्लीप, मैं एक बेसुकून सी या परेशान सी नींद में चला गया. एंड ड्रीम डैट आई हैड बिन किडनैप्ड, और मैंने ख्वाब में क्या देखा कि मैं किडनैप हो चुका हूँ, अगवा किया जा चुका हूँ. एंड चेन्ड टू अ ट्री, और मैं एक दरख्त से बांधा गया हूँ, चेन किया गया हूँ, बांधा जा चुका हूँ. बाय अ फेरोशियस पायरेट विद रेड हेयर, एक तंद हूँ बहरी कज़ाक. बहरी कज़ाक होता है जो समुद्री डाकू होते हैं. एक समुद्री डाकू ने या बहरी कज़ाक ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे किडनैप कर लिया है और उसने मुझे एक दरख्त के साथ बांध दिया है, और उस बहरी कज़ाक के बालों का रंग सुर्ख था. स्टूडेंट्स, इट वाज आवर टुडेज़ इट वाज आवर टुडेज़ टॉपिक. हमने अपने टॉपिक को, आज के टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिस्कस किया. फर्स्ट पार्ट में हमने अपनी जो निको बॉबिनेस की एक्सरसाइज सी को डिस्कस किया, और पार्ट 2 में हमने द रैंसम ऑफ रेड शीप की रीडिंग की है. इसमें हमने पेज 15 और 16 की. आप इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे, देन यू हैव टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीडिंग. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़.